Hello future officers, I welcome you all to the sprint series that has been launched by us for your upcoming CDS examination. So I am here with part 4 of your English preparation, and today we will do comprehension and sentence completion. Sentence completion will also help you in performing in closed test because the same kind of rules apply to the closed test. So with this you will be able to do both sentence completion as well as closed test. Also, before I begin today's class, I'd like to clarify that in the previous class there was one error in the 10th question where instead of saying by I used with. However, that sentence has to be the bus or the train was late by 50 minutes, not with. So please rectify that. It is by and not with. Rest of the options I have double checked. Other options are correct, but this was wrong, so I'm clarifying it right now. Right? So let us start with reading comprehension. Now, as you all know, when you have to do reading comprehension, you will be given a passage like this, which will be on normal mundane things, and then this will be followed by a few questions, जिसमें आपको उन questions के answers देने हैं. Now, to do reading comprehension, please remember, you do not have to read the entire passage. You are not required to read the entire passage. Why? Because first of all it wastes your time खराब होता है आपका, right? And second, it only confuses you, it only creates a confusion. So what we will do is we will avoid reading the passage. Instead, what we will do, that also I'll tell you. Instead of reading the whole passage, what we will do is we will read the questions. We will read the questions and then we will find out the important words. जो भी उस question के main words हैं, we'll find them. Then we will locate them in the passage. And then find out our answers. Right? So what we will do is पूरा का पूरा paragraph पढ़ने की जगह what we are doing is we will just simply read the questions. उन questions के जो important words हैं we will read those, and then what we will do next is we will locate those words in the passage. So let us begin. Let's start by looking at our first question. Now the first question says the writer believes that. इसमें हमें writer के belief की बात करनी है. All right. पढ़ने में ये question ऐसा लग रहा है कि आपको पूरा passage पढ़ना पड़ेगा. But first let us look at the options. The first option is most people could avoid making foolish mistakes if they were clever. तो यहाँ main point क्या है? Clever and foolish mistakes and avoiding. ठीक है, तो इसने बोला है कि लोग foolish mistakes करने से बच सकते हैं अगर वो थोड़े से clever हों तो. So we have to locate this कि ऐसा बोला है या नहीं. दूसरे में बोला है through observation we avoid making many mistakes. तो यहाँ पे हमारा main point है observation. दिस इज़ द मेन वर्ड. थर्ड में एरिस्टोटल नाम आ गया हमारे पास, वेरी इजी टू लोकेट. एरिस्टोटल मेड मैनी मिस्टेक्स बिकॉज ही वॉज नॉट ऑब्जर्वेंट एंड मैनी. उसने बहुत गलतियाँ की क्योंकि वो ऑब्जर्व नहीं करता था. तो यहाँ पे हमारा मेन फोकस शुड बी ऑन एरिस्टोटल. एंड लास्टली ऑल एरर्स आर कॉज्ड बाय आर ओन एरर इन थिंकिंग. अनदर इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन. अब हम पहले ये ढूंढते हैं कि उसने फूलिश मिस्टेक्स की बात कहाँ पे की है पैसेज में. सो व्हेन यू स्टार्ट द पैसेज राइट इन द बिगिनिंग यू रीड द वर्ड फूलिश ओपिनियंस. तो पहले हम यही लाइन पढ़ लेते हैं. इट सेज टू अवॉइड वेरियस फूलिश ओपिनियंस टू विच मैनकाइंड इज प्रोन, नो सुपर ह्यूमन ब्रेन इज रिक्वायर्ड. ऐसी ऑप्शन हमारे पास थी नहीं. आगे देखो, अब यहाँ आ गया ऑब्जर्वेशन. ये लाइन पढ़ो. इफ़ द मैटर इज वन दैट कैन बी सेटल्ड बाय ऑब्जर्वेशन मेक द ऑब्जर्वेशन योर सेल्फ. तो यहाँ ऑब्जर्वेशन की बात डेफिनेटली हुई है. एरिस्टोटल आ गया नेक्स्ट, इसको पढ़ो. एरिस्टोटल कुड हैव अवॉइडेड द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग दैट विमेन हैड फ्यूअर टीथ दैन मेन. द मिस्टेक से आपको क्या समझ में आता है? दैट दिस इज टॉकिंग अबाउट वन मिस्टेक इन पर्टिकुलर. और इसी के बारे में आगे जाके बात भी कर दी उन्होंने, जहाँ उन्होंने बोला कि उसने ऐसा सोच लिया था दैट विमेन हैव फ्यूअर टीथ दैन मेन, बिना ऑब्जर्व किए. ही जस्ट थॉट, उसके दिमाग में ये आया.
बट ओनली इफ़ ही हैड आस्क्ड मिसेस एरिस्टोटल टू कीप हर माउथ ओपन वाइल ही काउंटेड, तो ऐसी गलती ना होती। ठीक है, इसके आगे आपको पैराग्राफ में कहीं भी फूलिश वर्ड का यूज़ नहीं आ रहा नज़र, क्लेवर वर्ड नहीं आ रहा, राइट, एंड ऑल ऑफ आर ओन मिस्टेक्स, ये ऐसा भी कहीं पे आपको नहीं नज़र आएगा। इसका मतलब क्या, ऑब्जर्वेशन वाला सेंटेंस वॉज करेक्ट। इसमें एरिस्टोटल वाला भी करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि उसने एरिस्टोटल को मैनी मिस्टेक्स वाला बोला है, तो ये भी गलत, राइट, ये भी गलत और ये भी गलत। वी आर लेफ्ट विद बी ऑप्शन विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लेट मी रब दी अंडरलाइन पार्ट्स। इसको आप दोबारा पढ़ो, आपने अभी अभी पैसेज में पढ़ा है, यू विल फाइंड इट दैट दिस इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द ऑप्शन? द ऑप्शन इज़ थ्रू ऑब्जर्वेशन वी कुड अवॉइड मेकिंग मैनी मिस्टेक्स। और इसी की एग्जाम्पल उसने एरिस्टोटल की वो गलती दी है, लेकिन क्योंकि उसने यहाँ पे मैनी मिस्टेक्स बोल दिया, सो वी विल अवॉइड दिस ऑप्शन। आई होप दिस इज़ क्लियर। कैसे आप ढूंढ सकते हो पैसेज में से मेन वर्ड्स, ये आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब सारे ऑप्शन एरिस्टोटल वाले हैं, तो इसका मतलब हमें एरिस्टोटल वाला जो लाइन है उसको पढ़ना है। वी जस्ट हैव टू रीड अबाउट एरिस्टोटल, राइट, ही इज़ द ओनली वन जिसके बारे में यहाँ बात हो रही है। तो हम पहले एरिस्टोटल वाला पैराग्राफ ही पढ़ लेते हैं दोबारा। लेट मी रब इट सो दैट यू आर एबल टू रीड इट प्रॉपरली, राइट। अब आप यहाँ से शुरू करो जहाँ उसने एरिस्टोटल लिखा है, उसके पहले तो एरिस्टोटल की बात ही नहीं हुई, यहाँ से हो रही है। तो हम पढ़ते हैं, एरिस्टोटल कुड हैव अवॉइडेड द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग दैट विमेन हैव फ्यूअर टीथ देन मेन। मतलब कि एरिस्टोटल ने ऐसा सोच लिया था कि विमेन हैव लेस टीथ देन मेन बाय द सिंपल डिवाइस ऑफ आस्किंग मिसेज एरिस्टोटल टू कीप हर माउथ वाइड ओपन वाइल ही काउंटेड। तो क्या इसने बोला, इसकी हिंदी ये है कि एरिस्टोटल अपनी इस थॉट को कि विमेन हैव लेस टीथ देन मेन सिंपली इस बात से अवॉइड कर सकता था अगर वो अपनी वाइफ मिसेज एरिस्टोटल को बोलता कि वो अपना मुंह खोले और वो काउंट कर लेता, तो उसकी ये गलती ना होती। बस यही एक लाइन है जो एरिस्टोटल के बारे में बात कर रही है। अब आप नीचे देखो ऑप्शंस में, एरिस्टोटल वॉज एबल टू अवॉइड द मिस्टेक, नो ही मेड द मिस्टेक, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। एरिस्टोटल थॉट women have fewer teeth than men, yes. Aristotle proved that women have fewer teeth by counting his wife's teeth, no. उल्टा उसको सजेशन दिया गया था कि आपको काउंट करने चाहिए थे, लेकिन उसने नहीं किए काउंट। डी पार्ट, Aristotle may have thought that women have fewer teeth because he never had a wife, no, he had a wife. So our correct option is option B, right? Now look at your question number 3. The writer says that if he was writing a book on hedgehogs, हमारा मेन फोकस क्या है, राइटर एंड सेकेंड hedgehog। तो अब हम पैसेज पे उस जगह जाएंगे जहाँ hedgehog की बात हो रही हो। hedgehog इज़ एन एनिमल, ओके, जस्ट टू क्लैरिफाई। लेट्स सी, यहाँ hedgehog कहाँ लिखा है, ये रहा hedgehog। लेट्स रीड अबाउट इट। आई बिलीव माई सेल्फ दैट hedgehogs ईट ब्लैक बीटल्स। ये राइटर का बिलीफ है कि hedgehog जो है वो ब्लैक बीटल खाते हैं। बिकॉज आई हैव बीन टोल्ड दैट दे डू, क्योंकि उसको ऐसा बताया गया था। बट इफ़ आई वर राइटिंग अ बुक ऑन द हैबिट्स ऑफ hedgehog, लेकिन अगर मैं hedgehog के खाने की आदतों पे एक किताब लिख रहा होता, आई शुड नॉट कमिट माई सेल्फ, मैं इसको डेफिनेटली नहीं बोल सकता, अनटिल आई हैड सीन वन एन्जॉइंग हिज डाइट, जब तक कि मैं खुद अपनी नज़रों से ये देख ना लूँ कि hedgehog सच में ब्लैक बीटल्स को खाते हैं। तो ये बात हुई है 3 लाइनों में। अब आप अपने ऑप्शंस पढ़िए। ही सेड ही वुड मेंटेन दैट दे ईट ब्लैक बीटल्स बिकॉज ही हैड बीन टोल्ड सो, नो, उसने बोला अगर वो किताब लिख रहा होता तो वो ऑब्जर्व करता, ये गलत है। ही वुड फर्स्ट ऑब्जर्व देयर ईटिंग हैबिट्स, येस, ये उसने बोला। थर्ड देखो, ही वुड थिंक इट अननेसेसरी टू वेरीफाई दैट दे आर ब्लैक बीटल्स, नो, ही वॉन्टेड टू वेरीफाई। और फोर्थ, he would make the statement that they ate black beetles and later verify it, no, पहले verification उसके बाद वो लिखेगा इसके बारे में। So B is our correct option. Now look at the fourth one. Again it is talking about the opinion of the writer. यहाँ क्या बातें हो रही हैं, यूनिकॉर्न की बात हो गई, सैलामेंडर की बात हो गई, एंशियंट एंड मिडीवल राइटर्स की बात हो रही है।
राइट। तो अब हमें ये चीज़ें पैसेज में लोकेट करनी है। ये चीज़ें कहाँ पे लोकेट कर पा रहे हो आप? अभी हम थोड़ा सा इसको क्लियर ऑफ कर दें सो दैट वी आर एबल टू रीड इट, राइट। यस, ऑल राइट। अब हम देखते हैं ये कहाँ लिखा है। सो आई कैन रीड एंशियंट एंड मिडीवल यहाँ पे, सॉरी आई जस्ट कट द टेक्स्ट, या सो एंशियंट एंड मिडीवल यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ यूनिकॉर्न्स और सैलमेंडर्स। तो यही लाइंस होंगी 3 जिनमें हमारा आंसर है। लेट्स रीड इट। एंशियंट एंड मिडीवल राइटर्स न्यू ऑल अबाउट यूनिकॉर्न्स एंड सैलमेंडर्स। उनको मालूम था इनके बारे में, ठीक है। नॉट वन ऑफ देम थॉट इट नेसेसरी टू अवॉइड डॉगमैटिक स्टेटमेंट्स अबाउट देम बिकॉज ही हैड नेवर सीन वन ऑफ देम। मतलब उनको ये मालूम था कि ऐसी कोई चीज़ होती है, लेकिन उनमें से किसी ने भी ये कोशिश नहीं की कि हम बाहर निकल के इस चीज़ को अपनी आंखों से ऑब्ज़र्व करें ताकि हम इसके बारे में कॉन्फिडेंट हो सकें और श्योर हो सकें। दे जस्ट रोट अबाउट इट, क्योंकि उन्होंने भी राइटर की तरह किसी से सुना था ऐसा कि ये होते हैं, है ना। सो अब आप अपने ऑप्शंस देखिए। पहला है यूनिकॉर्न्स एंड सैलमेंडर्स वर ऑब्जर्व्ड बाय एंशिएंट एंड मिडीवल राइटर्स बट वर अननोन टू मॉडर्न राइटर्स। नो, दे वर नॉट ऑब्जर्व्ड, ये गलत है। बी ऑप्शन, ancient and medieval writers wrote authoritatively about unicorns and salamanders though they had never seen them. Yes, they did write. ये हो सकता है हमारा ऑप्शन। थर्ड, unicorns and salamanders do not exist. ऐसा टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ, so no. Only those who had observed the habits of unicorns and salamanders wrote about them. No, actually ये उल्टा था, जिन्होंने देखा भी नहीं था उन्होंने लिख दिया था। So B is our correct option. So look, what we did over here is we did not even read the passage. We just intelligently looked for the important words. We just located the important words in the text. And then what we did is उसके रिलेटेड हमने जो भी 1 या 2 स्टेटमेंट्स दी हुई थी टेक्स्ट में उनको हमने पढ़ा and then we found out our answers. तो इससे हमें क्या पता लगता है? You can save your time on passage by avoiding to read the passage. Instead आप सीधा questions पे जा सकते हैं. This is my advice to you, right? And आपने देखा है हमने गलत ऑप्शन कोई भी इसमें चूज़ नहीं किया because we were able to locate these words in the text, right? So the second part of today's class is sentence completion. Now sentence completion में क्या है? Again the same rules of grammar apply to this section also. सेम रूल्स हैं जैसा हमने एरर्स में पढ़ा, जैसा हमने उससे पहले जम्बल्ड सेंटेंसेस में पढ़ा. यू हैव टू मेक सेंस ऑफ द सेंटेंस. यू हैव टू मेक सेंस ऑफ द सेंटेंस. अगेन इसमें हम क्या करेंगे? वी विल अगेन फिल आर ऑप्शंस. वी विल फिल आर ऑप्शंस इन द ब्लैंक and then see if it is making any sense or not, and then that will give us the correct answer, right? So let us begin practicing that. Let's start with the first sentence. The first sentence says Deepak will be able to speak Marathi well a year from now dash he works hard. will की बात हो रही है तो यहाँ पे फ्यूचर में चले गए हम. कहने का मतलब कि दीपक बहुत अच्छी मराठी बोलेगा अगर वो मेहनत करे तो यहाँ पे हमको वी हैव टू सब्सटीट्यूट अगर. हिंदी वाले अगर को हमको यहाँ पे इंग्लिश में सब्सटीट्यूट करना है. अगर कैसे सब्सटीट्यूट होगा? आप थ्रू लिखो. दीपक विल बी एबल टू स्पीक मराठी वेल अ ईयर फ्रॉम नाउ. थ्रू ही वर्क्स हार्ड? नो. इंस्टेड ही वर्क्स हार्ड? नो. इंस्टेड होता है अगर. इंस्टेड इज द व्हेन यू गिव एन ऑप्शन. व्हेन यू गिव एन ऑप्शन टू समवन दैट इज इंस्टेड. यहाँ पे हम ऑप्शन तो दे नहीं सकते, मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? तो यहाँ क्या आएगा? दीपक विल बी एबल टू स्पीक मराठी वेल अ ईयर फ्रॉम नाउ. डिड ही वर्क्स हार्ड? नो. इसको प्रोवाइडेड करो आप. देन प्रोवाइडेड विल बिकम आर आंसर. दीपक विल बी एबल टू स्पीक मराठी वेल अ ईयर फ्रॉम नाउ प्रोवाइडेड अगर वो मेहनत करता है तो. सो प्रोवाइडेड विल बिकम आर आंसर. दिस इज प्रोवाइडेड नॉट प्रोवाइड. ओके, तो ऐसे हम ऑप्शंस को फिल करके वी कैन मेक सेंस ऑफ द क्वेश्चन, राइट? नाउ सेकेंड वन, ही वॉज चार्ज डैश अ होल सीरीज ऑफ क्राइम. उसके ऊपर बहुत सारे जो क्राइम्स हैं उनका जो दोष है वो लगाया गया था, राइट? सो ही वॉज
charged by a whole series of crime? No. On a whole series of crime? No. So you are charged with, right? You are charged with a whole series of crime. Charged for नहीं आएगा यहाँ. आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, आपको इन जुर्मों के तहत गिरफ्तार किया जाता है. तो जो तहत है ना, दैट इज़ विद. ही वॉज चार्ज्ड विद अ होल सीरीज ऑफ क्राइम. उसके ऊपर ये लगाए गए थे क्राइम के चार्जेस, राइट. लुक एट द थर्ड ऑप्शन क्वेश्चन. राजेश कुमार हैज़ डैश द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर इन सेवरल फिल्म्स. मतलब कि जो राजेश कुमार हैं उनको बहुत सारी फिल्मों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला है. तो उनको अवार्ड मिला है, उसके लिए एडमायर्ड फिल्म फेयर अवार्ड? नो. स्नैच्ड, उन्होंने छीन लिया किसी से? नो. रिसीव यहाँ पे नहीं आएगा, वी विल से कॉन्फर्ड. वेन एवर यू आर गिवन समथिंग प्रेज वर्दी, प्रेज वर्दी, जैसे कि आपकी डिग्री, जैसे कि किसी स्टेट का स्पेशल मेंशन और अ प्राइज़, जैसे कि ये फिल्म फेयर अवार्ड है, तो ही इज़ कॉन्फर्ड बाय दैट, ही डिड नॉट रिसीव. और वैसे भी ये पास्ट टेंस में है, राइट. सो ही वॉज कॉन्फर्ड. राजेश कुमार वॉज कॉन्फर्ड द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन अ लॉट ऑफ फिल्म्स, राइट. सो इट विल बी कॉन्फर्ड. नाउ लुक एट योर फोर्थ क्वेश्चन. सिंस अमित वॉज एन डैश फोटोग्राफर, ही डिड नॉट चेंज एनी मनी फॉर टेकिंग आर पिक्चर. ठीक है, ही डिड नॉट चार्ज एनी मनी. अब पहली बात तो अगर मैं आपकी जगह पे होती तो मैं यहाँ एन ऑब्जर्व करती. इसका मतलब आंसर में कोई वावल आएगा, तो प्रोफेशनल नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ कॉन्सोनेंट. हमारे पास 3 ऑप्शन है, एमेच्योर, यूजलेस, अननोन. एमेच्योर होता है जो अभी अब नौसिखिया मतलब somebody who has just started doing work, right. तो यूजलेस फोटोग्राफर को हम क्यों बुलाएंगे अपनी फ़ोटोज़ खींचने? दिस इज़ रॉन्ग ऑप्शन. अब या तो वो अननोन है या एमेट्योर है. अननोन भी होगा अगर, एन अननोन फोटोग्राफर वी विल नॉट कॉल फॉर एनी सॉर्ट ऑफ पिक्चराइजेशन, राइट. लेकिन हम एक नौसिखिए को ज़रूर बुला सकते हैं, क्योंकि उसको एटलीस्ट कुछ नॉलेज होगी ऑफ बीइंग अ फोटोग्राफर. सो यहाँ आएगा एमेट्योर, विच मीन्स अ बिगिनर, somebody who has just started doing some work. Now look at the fifth one. He had a dash shave when his car narrowly missed hitting the truck. उसकी कार ट्रक से बचते हुए बड़ी मुश्किल से बची है ना, बड़ी मुश्किल से बचा वो. तो वहाँ उस केस में हम क्या बोलेंगे? He had a close shave. बहुत नज़दीक आ गया था वो उस एक्सीडेंट के, लेकिन वो बच गया. नियर नहीं आएगा, इट विल बी क्लोज. Clean and bad are not the options. Close shave in itself is, you can say this is an idiom, having a close shave, and it is usually used जब कोई नेगेटिव चीज़ की बात हो रही हो, जैसे उसका एक्सीडेंट होने वाला था. He had a close shave, right. Sixth question. You will be cured dash this disease at the earliest. बहुत जल्दी ही तुम्हारे इस बीमारी का इलाज हो जाएगा. तुम्हारी इस बीमारी का, है ना. यू विल बी क्योर्ड फॉर दिस डिजीज़? नो, फॉर नहीं है. यू विल बी क्योर्ड विद दिस डिजीज़. आपको तो ऑलरेडी बीमारी लग चुकी है ना. अगर लगने की बात हो रही होती तो हम विद लेते. अब आपके पास ये वाला ऑफ है और ये वाला ऑफ है, राइट. यू विल टेक सी ऑप्शन. यू विल बी क्योर्ड ऑफ दिस डिजीज़ एट द अर्लीस्ट. वाई? Because this is the only option which is the most suitable. You have to go with the most suitable option, right. कई बार options बहुत narrowly पास में दिए हुए होते हैं, very close to each other, but you have to go with the most suitable one. Please take that into notice. Now look at the 7th question. In the well, water is only 3 meters from the dash. In the well, water is only 3 meters from is your golden word. In the well, water is only 3 meters from the. पहली बार डाइव और शैलो तो इसमें आएंगे नहीं. अब आप देखो, या तो सरफेस से 3 मीटर है या बॉटम से. बट अगेन वेरी क्लोज आंसर्स, बट वी विल गो विथ सरफेस बिकॉज दैट इज़ अ मोर सूटेबल ऑप्शन. इन द वेल वाटर इज़ ओनली 3 meters फ्रॉम द सरफेस. सरफेस से 3 मीटर ही है बस, नॉट विथ बॉटम. Bottom is also a very close option, again I'm saying, but you will go with the most suitable one, which is surface. Now look at your 8th question.
योर हार्ट्स एंड लंग्स डैश द केज मेड फॉर देम बाय योर रिब्स. आपने बायो में पढ़ा होगा हमारे जो लंग्स और हार्ट्स हैं वो हमारे रिब्स के अंदर होते हैं, है ना. तो इमीडिएटली और लंग्स इटसेल्फ का क्या मतलब है उसमें. योर हार्ट एंड लंग्स ब्रीद द केज मेड फॉर देम. नो, दे ऑक्यूपाई द केज. वो उसके अंदर रखे हुए हैं. हमारे जो हार्ट और लंग है वो हमारे रिब केज के बिल्कुल बीच में हैं. सो दैट विल बी ऑक्यूपाइड. दे हैव ऑक्यूपाइड दैट स्पेस. लुक एट द 9th क्वेश्चन. राम अग्रीड टू डैश माई ऑर्डर्स. मेरा काम करने के लिए राम मान गया. मेरा काम करने के लिए. सो कैरी अप इज़ नॉट एन ऑप्शन. कैरी इन इज़ नॉट द ऑप्शन. यू आर लेफ्ट विथ कैरी अवे एंड कैरी आउट. यहाँ पे सबसे सूटेबल ऑप्शन है कैरी आउट. मोस्ट सूटेबल ऑप्शन. राम अग्री टू कैरी आउट माई ऑर्डर्स. ये आपने कई बार सुना भी होगा. वाइल स्पीकिंग टू समवन यू माइट हैव हर्ड एन ऑफिसर सेइंग दैट सो एंड सो इज़ कैरिंग आउट द ऑर्डर्स गिवन बाय मी. इसका मतलब मेरे द्वारा दिए हुए ऑर्डर्स को के ऊपर वो काम कर रहा है. दिस इज़ अ फ्रेजल वर्ब. दिस इज़ अ फ्रेजल वर्ब and the answer will be carry out. Again, most suitable option. Now look at the 10th question. Even if it rains all day, I will not be able to dash my journey. Again we have phrasal verbs. We have phrasal verb. Now put away my journey नहीं. Put away आप journey को नहीं. You put away things. You put away things. So this is not the option. यू पुट ऑफ. पुट इन आप करते हो एफर्ट. जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि आई पुट इन अ लॉट इन द जिम. आई पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट इन द जिम. आई पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट वाइल स्टडिंग. सो पुट इन तो नहीं, क्योंकि इसमें सिचुएशन की बात हो रही है कि बारिश भी आ जाए फिर भी मैं अपनी जर्नी को कैंसिल नहीं करूँगा, है ना. अब आपके पास दो ऑप्शन है, पुट ऑफ एंड पुट आउट. यू पुट आउट फायर. You put out fire. So this is also not the option. Your option is option B, put off. Even if it rains all day, I will not be able to put off my journey. Again, go with the most suitable option. Please fill all the options inside your blanks, and those options will become your helpers. They will help you to locate the correct answer. All right. Now with this I end your session. If you have any doubts, you can contact us on WhatsApp on the given number. You can also join our Telegram channel. The link of the channel is given in the description. Also students, whatever we have done in sentence completion, हमने जो भी अभी sentence completion में पढ़ा है ना, exactly same will be applicable to your closed test. Same rules, बिल्कुल ऐसे ही आपको closed test को करना है. You have to read it and then you have to put in the correct option inside it. But once again I'm saying, if you want me to bring a session specially on closed test, please leave a comment below the video and tell me if you want me to bring a session. अगर आप चाहते हो कि मैं क्लोज टेस्ट पे अलग से एक सेशन लेके आऊँ, देन प्लीज़ आप कमेंट करिए वीडियो के नीचे और हमें बताइए. देन आई विल ब्रिंग अ सेशन ऑन क्लोज टेस्ट ऑल्सो. ओके. अदरवाइज बाय एंड लार्ज सेंटेंस कंप्लीशन वाले रूल्स ही इसके ऊपर एप्लीकेबल हैं. राइट. एंड आई होप यू हैव रेक्टिफाइड प्रीवियस लेक्चर की मिस्टेक. उसमें मैंने लेट विद बोल दिया था. इट इज़ नॉट विद, इट इज़ लेट बाय 50 मिनट्स. राइट. सो प्लीज़ उसको आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा. एंड स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर प्रैक्टिसिंग. प्लीज़ प्रैक्टिस योर PYQs and do them properly, and you will be able to solve your upcoming serious examination English exam very effectively. Please follow the rules that are being told to you, and I hope you are liking the sessions. So please join our Telegram channel where you will be given all the updates timely. Right, the link will be in the description box. Thank you so much.